We'll talk about menstrual cycle. We all know menstrual cycle begins at puberty. It begins at puberty. And it all starts with hypothalamic pituitary ovarian axis. ठीक है. From hypothalamus, there is release of GnRH, gonadotropin releasing hormone, which acts on pituitary. Pituitary पे act करता है GnRH, which GnRH is secreted in pulsatile manner. तभी जो है वो पिट्यूटरी को पल्सेटाइल मैनर में सिक्रीट होगा, तभी इट विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी. So it will stimulate anterior pituitary. Anterior pituitary will secrete FSH and LH. And FSH, it is the initiator of ovarian cycle. FSH, what is FSH? FSH is follicle stimulating hormone. So it will stimulate follicle formation. Follicle क्या होता है? Follicle, it is a cell which is arrested in, it is a oocyte, primary oocyte. Primary oocyte which is arrested in diploting stage of prophase 1. Diploting stage में arrested है primary follicle. What is follicle? Follicle is a primary oocyte which is arrested in diploting stage of prophase 1. ठीक है. और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेट स्टेट बोलते हैं. डिक्टेट स्टेज बोलते हैं. अब FSH है. FSH is follicle stimulating hormone. It will stimulate follicle synthesis, folliculogenesis. अब folliculogenesis में क्या होता है? Follicle है, उसके आजू बाजू there is flat layer of cell, flat squamous layer of cell. ठीक है. Single layer of flat cells. This is primordial follicle. Now this flat squamous layer of cell, it is transferred into the cuboidal cell. This cell is transferred into cuboidal cells. Now it is called as primary follicle. The flat squamous cells से it is surrounded, when follicle is surrounded by flat squamous cells, then it is called as primordial follicle. When it is surrounded by cuboidal cell, then it is called as primary follicle. Single layer है अभी. ठीक है. Then this single layer of cuboidal cell form multiple layer. मल्टीपल लेयर बन जाती है इसकी. ठीक है. मल्टीपल लेयर ऑफ सेल. Then it is called as secondary follicle या pre-antral follicle. Secondary follicle और pre-antral follicle. Then it differentiate into antral या tertiary follicle. इसमें क्या आ जाता है? There is a cavity inside oocyte. oocyte के अंदर क्या आ जाती है? एक cavity आ जाती है, antrum आ जाता है. Antrum, it is a cavity inside the follicle. ठीक है. बाकी बाहर जो है वो क्यूबॉइडल सेल की मल्टीपल लेयर रहती ही है. दिस इज नोन एज, जब एंट्रल आ जाता है, टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल. अब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फॉलिकल की स्टेजेस है. प्राइमोडियल फॉलिकल था जिसमें फ्लैट स्क्वामस सेल थी. ठीक है. देन इट इज ट्रांसफॉर्ड इनटू क्यूबॉइडल सेल, जो प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं. अब मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा, क्यूबॉइडल सेल जो है वो ग्रैन्युलोसा एंड थीका सेल्स में बदल गई. ग्रैन्युलोसा एंड थीका सेल्स में बदल गई. मल्टीपल लेयर्स, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल, प्री एंट्रल फॉलिकल. अगर इसमें कैविटी आ गई, एंट्रम आ गया, एंट्रल कैविटी आ गई, दैट इज नोन एज टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल. This is folliculogenesis.
ठीक है. Now, where is the role of FSH in this folliculogenesis? We have studied this. FSH is follicle stimulating hormone. We haven't talked about FSH till now. ठीक है. तो in this there are two stages. FSH independent development of follicles and FSH dependent development of follicles. Till early secondary follicle, there is FSH independent development of follicle. And from late secondary follicle या late preantral follicle to tertiary follicle, FSH dependent of follicle, because FSH receptor appear on granulosa cell. FSH receptor जो है वो अपीयर होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स पे. ग्रैन्युलोसा सेल्स पे ही है जो FSH रिसेप्टर जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स पे अपीयर होते हैं. तो लेट फेज ऑफ प्री एंट्रल फॉलिकल से या सेकेंडरी फॉलिकल से FSH डिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होना स्टार्ट होती है. ठीक है. Until this pre-entral, early phase of pre-entral, this is a cycle of approximately 70 days. 70 days की साइकिल है. एंड FSH डिपेंडेंट जो ग्रोथ होती है, इट इज ओनली 14 days. ठीक है. तो जनरली दिस इज प्री-एंट्रल फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, आई विल से ग्राफियन फॉलिकल. तो जनरली जो है वो फॉलिकल डेवलपमेंट में प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में जाने में 84 डेज, तो 84 टू 85 डेज हमें लगते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल में जाने से. ठीक है. अब FSH जो है करता क्या है? FSH डिपेंडेंट ग्रोथ है, तो FSH के एक्शंस क्या है? नाउ विल सी FSH के. FSH जो है, FSH के रिसेप्टर्स हमें पता है ग्रैन्युलोसा सेल पे एक्ट करता है. ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल, ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल्स उस पे एक्ट करेगा, उसी पे उसके रिसेप्टर्स है. ठीक है. तो FSH विल फॉर्म ईस्ट्रोजन. तो ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करके फॉलिकल से क्या बनवाएगा? ईस्ट्रोजन एंड इनिबिन बी. ठीक है. ईस्ट्रोजन इज मेन हार्मोन जो ग्रैन्युलोसा सेल बनाती है, इज द मेन हार्मोन जो ग्रैन्युलोसा सेल बनाएगी बाय स्टिमुलेशन ऑफ FSH. तो ईस्ट्रोजन क्या करवाता है? प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन कैविटी, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है. एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराए. ठीक है. और इनिबिन बी क्या करता है? इनिबिन बी जो है इसका एक ही फंक्शन है, दिस गिव नेगेटिव फीडबैक टू FSH. नेगेटिव फीडबैक देता है ये FSH. तो मतलब इनिबिन बी जो है वो FSH ही इसको बना रहा है, FSH को ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. तो क्या हो जाएगा? FSH जो है वो कम हो जाएगा. FSH कम हो गया तो अट्रेजिया ऑफ फॉलिकल्स, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट यही करा रहा है तो फॉलिकल्स का अट्रेजिया हो जाता है. ठीक है. जो स्टिमुलेट हो रहे थे, एक्सेप्ट वन फॉलिकल जिसके पास बहुत सारे FSH के रिसेप्टर्स है, मैक्सिमम FSH रिसेप्टर है, वो रह जाता है. एक्सेप्ट वन फॉलिकल विच इज नोन एज डोमिनेंट फॉलिकल, जिसका आगे जाके क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा. ठीक है. तो डोमिनेंट फॉलिकल, एक फॉलिकल रह जाता है. ठीक है. ईस्ट्रोजन और क्या करता है? ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करता है. ये भी ईस्ट्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक टू FSH देता है. एंड ईस्ट्रोजन ऑल्सो जनरली जो है LH को भी ईस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक ही देता है. ठीक है. बट इफ ईस्ट्रोजन जो है मोर देन 200 पिकोग्राम फॉर ओवर 48 आवर्स या मोर देन 48 आवर्स, ओवर या मोर देन 48 आवर्स, more than 200 picogram for over 48 hours or more than 48 hours, then this give positive feedback.
ठीक है, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्च, तो क्या होगी, एलएच सर्च होगी। ठीक है, अब एक डोमिनेंट फॉलिकल बन चुका है, एलएच सर्ज हो चुकी है। अब एलएच सर्ज होगी, एलएच क्या करेगा, एलएच जो है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, अब तो डोमिनेंट फॉलिकल ही बचा है, डोमिनेंट फॉलिकल की जो ग्रैन्युलोसा सेल है उस पे एलएच रिसेप्टर्स होते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल के ग्रैन्युलोसा सेल पे देयर आर एलएच रिसेप्टर्स। एलएच रिसेप्टर्स किसने इंड्यूस किया, दिस एलएच रिसेप्टर इज इंड्यूस्ड बाय एफएसएच ओनली। ठीक है, तो ये काम एफएसएच ने किया, एफएसएच ने जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एलएच के रिसेप्टर लगा दिया। अब एलएच क्या करेगा ग्रैन्युलोसा सेल पे, इट विल ल्यूटिनाइज ग्रैन्युलोसा सेल्स, ल्यूटिनाइज वैक्यूलाइज ग्रैन्युलोसा सेल्स, तो ल्यूटिनाइज कर देगा। ठीक है, ल्यूटिनाइज करने के बाद ग्रैन्युलोसा सेल्स विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन, वैक्यूल्स आ जाएंगे जिसमें फैट स्टोरेज होगा, फैट स्टोरेज होते विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन, जो कि फैट से ही बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन विच इज द मेन हार्मोन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ल्यूटिनाइज फॉलिकल। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक देता है, estrogen generally negative feedback देता है to LH and FSH both, but if estrogen is increased for more for over 48 hours of by more than 200 picogram, तो then it will give positive feedback to LH, तो LH सर्च आ जाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है वो LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक ही देता है, तो LH एंड FSH बढ़ेंगे। ठीक है, तो LH क्या करवाएगा, एक तो LH जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवा रहा है। ठीक है, फिर ग्रैन्युलोसा एक्ट पे एलएच एक्ट करता है थीका सेल्स पे भी। ठीक है, थीका सेल्स पे क्या होता है, एंड्रोजन्स रहते हैं, तो एंड्रोजन से वो बनाता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने एलएच सर्च करवाया, अब एलएच जो है वो क्या बनवा रहा है, ईस्ट्रोजन बनवा रहा है थीका सेल से, ईस्ट्रोजन 1 एंड ईस्ट्रोजन 2, E1 E2 दोनों बनाता है। ठीक है, और मेनली जो है यहाँ पे E2 प्रिडोमिनेंस रहता है ज्यादा। ठीक है, एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज। ठीक है, अब एलएच सर्च, एलएच एक और क्या काम करवाता है, मियोसिस 1 रिज्यूम करवाता है, जो हमारे टिक्टाइट स्टेज थी उसको आगे बढ़वाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनवाएगा बेसिकली। ठीक है, इसको डेवलप करवाएगा। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग जो ग्रैन्युलोसा सेल है उसको कन्वर्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये मतलब ये क्या करवाता है, बेसिकली ओव्यूलेशन करवाता है। So this is about menstrual cycle.